Okay, I hope you all enjoyed the tea and coffee and particularly the cinnamon and sugar cookie. I did. We are not done yet. We have another discussion that is going to riff off the economic advisor and the report that we heard earlier, delving even deeper into rural youth employment. This is a discussion about the innovation models for youth employment and entrepreneurship in India. So we're going to have a great panel discussion up here talking about the models and how they're applied and how they can be scaled up for greater impact. I would like to introduce back to the stage the co-author of the report we launched earlier. That would be Anu Mehta, who I've already introduced, so we can just give her a round of applause. She will be joined by Kanika, who's green and inclusive entrepreneurship vertical at Development Alternatives. She's currently also part of the founding team and director of India Micro Enterprises Development Foundation, a Section 8 company that aims to build local ecosystems for green and inclusive entrepreneurship. Let's put our hands together for Kanika. And because I hope you are all, not that I want to appear ageist, but I hope that you recognize that we have some wonderful younger women to discuss youth employment here today. And we're also going, excuse me? Recent youth, yes. They're beyond youth, but they still feel the youth vibe, don't they? But we're also going to be joined on this panel discussion by Nikki and Diksha, who are from the district of Amroha in Uttar Pradesh. Please come. They're real youth, and they're going to give us their perspective as well. And my colleague, Neeraj Ahuja, who's been working tirelessly, is going to be the moderator of this session. He's the Associate Director of TRI. Thank you, Lindy, for this warm welcome, and thank you everyone for joining us for this concluding session. We designed this entire day so that you guys can get the most of the knowledge and the insights about our topic for the day, Future is Young. और क्योंकि हम लोग के साथ में युवा साथी भी जुड़े हैं, आज स्टेज पे भी युवा साथी हैं, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में शिफ्ट करता रहूँगा. आई गेस यहाँ सभी को हिंदी भी ठीक से समझती होगी. अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ट्रांसलेट भी कर दूंगा. बट क्योंकि हमारे साथ में युवा साथी भी जुड़े हैं और हमारी इस जर्नी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, शुरुआत से ही प्रोग्राम में एंगेज रहे हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें, इंसाइट्स हैं जो हम युवाओं के बिना नहीं प्रोग्राम डिज़ाइन में ला सकते हैं. सो धन्यवाद एक बार आप सभी का आज इस पैनल में ज्वाइन करने के लिए. आपने आज शुरू से देखा, हम लोगों ने शुरुआत में एक सेशन रखा था कि भारत में युवाओं को अगर रोजगार देना है तो एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी अवसर हैं. उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट्स जाने वाले हैं देश में. सरकार भी उसके ऊपर बहुत खर्चा कर रही है. आप लोग देख रहे हैं रोड्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं. अभी इकोनॉमिक एडवाइज़र जी थे, वो भी बता रहे थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो पेस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जो गति है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसमें सरकार निवेश कर रही है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी निवेश कर रहा है और उसमें एक बड़ी संख्या में अवसर पैदा हो रहे हैं. तो उसमें हम लोग कैसे युवाओं को उन अवसरों को लेने में मदद कर सकते हैं, उनके लिए इसको सुगम बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा हुआ. बड़े अच्छे इंसाइट्स आए. उसके बाद आपने देखा हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कि युवाओं की क्या इच्छाएं हैं, क्या उनके एस्पिरेशंस हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं, बैरियर्स हैं, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी हुआ था. उसमें क्या निकल के आया है वो भी आपने देखा. और उसको फॉलो अप करते हुए हमारे साथ में वी अनंत नागेश्वरन जी थे, जो कि
ओवरऑल एक मैक्रो पिक्चर दी, एक बड़ा पिक्चर कि एक तरफ तो युवा हैं जिनको अवसर चाहिए और दूसरी तरफ देश है, देश में क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से हम युवाओं के लिए अवसर बढ़ा सकते हैं। तो उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छी सारी हमें बातें बताई। एंड देन आखिरी में ये पूरा सत्र को हम लोग ले जाते हैं अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव की तरफ कि क्या मॉडल्स हैं। ये एक समस्या है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है हमारे देश में, काफ़ी ज़्यादा समस्या है, पूरे दुनिया भर में इसकी समस्या है। पर ग्लोबल साउथ जिसको बोलते हैं या कह लीजिए साउथ पैसिफिक में ये ज़्यादा है, तो हमारे देश में भी इसकी समस्या काफ़ी है। तो इसके लिए किस तरह के मॉडल्स काम करते हैं हमारे देश में, कई सारे इसको लेकर के मॉडल्स बनाए गए हैं। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकार है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये एक ऐसी जटिल समस्या है, एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही एक जटिल समस्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं और सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप एक पहलू को सॉल्व करने जाते हैं या एक पहलू को हल ढूंढने जाते हैं तो बाकी पहलुओं को भी आपको देखना पड़ता है, अदरवाइज वो सोल्यूशन पूरी तरह से कारगर नहीं होता है। तो ये जो है युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, ये एक जटिल समस्या है। इसके लिए दुनिया भर में प्रयास किए गए हैं और हिंदुस्तान में भी, भारत में भी प्रयास किए गए हैं। तो आज का जो पैनल है उसमें हम लोग यही समझेंगे कि किस तरह के ये प्रयास हैं, ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि हम लोग बड़े पैमाने पर युवाओं को मदद कर सकें रोजगार पाने में, और कैसे ये जो समस्याएं हैं अलग अलग स्तर पे उनको दूर किया जाए। तो आज के पैनल में हम लोग वही चर्चा करेंगे कि किस तरह के मॉडल्स हैं और क्या काम करता है, कैसे हम लोग उसको स्केल कर सकते हैं। तो एक बार पुनः धन्यवाद के साथ में हमारे साथ में अनु है, कनिका है और युवा साथी भी हैं जो अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कनिका से, कि अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर, थोड़ा सा समझाएं कि डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के जो प्रोग्राम्स हैं, एक आपका बड़ा इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम है वर्क फॉर प्रोग्रेस, उसमें कई सारे हम लोगों ने प्रयास किए हैं युवाओं को और महिलाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज से जोड़ने के लिए। तो क्या ऐसे आपके प्रयास रहे हैं और किस तरह के आपने उसके रिजल्ट्स देखे हैं, इम्पैक्ट्स देखे हैं, जो कि आप शेयर करना चाहेंगे एक लार्जर ऑडियंस के साथ में, भारत के कंटेक्स्ट में, ग्रामीण के कंटेक्स्ट में। तो आई विल हैंड ओवर टू कनिका, मैं कनिका से रिक्वेस्ट करूंगा, माइक भी है। Mic, okay. Although if you can hear me, is it okay? So, thank you so much, Neeraj. But if it's patchy, let me know. That will be better. So, seems on, huh? So, thank you so much, Neeraj and TRI. Matlab, we've actually worked on this topic together as part of the Work for Progress program, or as partners beyond just one program. And we've also shared, we've had opportunity to share, but it's really nice कि आज opportunity मिल रही है to talk more to young people in the room and with young people rather than just, you know, practitioners, because one of the most basic belief जो हमारे program का है, which is you have to listen to them. So I'm really hoping that we get a chance to hear and actually engage in dialogue, if that's all right. And get to hear ideas, because that's one part of approach, and the other is that the potential of the young person as change maker is really high in our eyes. So just to set thoda sa context into where our work comes from, and I was looking at some recent data on this. If you look at entrepreneurship as a solution towards job creation or towards youth becoming leaders, then if you look at some recent data, which I'm quoting the Global Entrepreneurship Monitor, and I think that will also resonate a bit with your study as well, which is that 87% of young people चाहते हैं entrepreneur बनना. This is the most recent data India का आया है, right?
लेकिन उसके जो रीजंस हैं वो सिर्फ सरफेस लेवल की बात है. रीजंस जो हैं have more to do with the fact कि jobs नहीं हैं. If you look at the second level of data in that, 81%, they've also found out that 81% people have the knowledge and the skills. So skills or knowledge भी है. And the third है, which is basically 50% are still very scared of failure. So if you were to look at all three levels, we feel that the needle has to move more towards enabling young people to have the confidence or the aspiration of moving towards what we call opportunity driven entrepreneurship. कि आप एक business नहीं लगा रहे, entrepreneur या leader नहीं मिल रहे, बन रहे because आपके पास कोई choice नहीं है. Because when a young person or an individual loses doesn't have access to choice, then we are disempowering our youth. And the fact that you now want to be an entrepreneur because you have a choice, you find resources, you find opportunities on what you want to do as a business. We do a lot of work, and isko main thoda sa tangible bana deti hu. We run a competition, for example, which is called Kaun Banega Business Leader, which is all about someone internalizing ki I can also do it. I mean, and our country is very entrepreneurial. We have the third largest ecosystem in the world for startups, and most of them are run by young people. But मुझे लगता है that there are many more people, young people who are brimming with ideas, जिनको really unleash करना है. So not set up a business because you don't have a choice, but because you're there. So through the competition, and brilliant ideas come up. There was one of our winners who basically what we had also done is make the young people be aware of the problems in that community, and twisted the things. Rather saying ये problems हैं, अब ये problems आप उसके solutions निकालिए. And it's amazing the ideas that were coming. There was a young woman, I still remember, who decided alcoholism is a major issue in her community, and she's going to set up a kombucha plant, which is in a peri-urban area of NCR region. She also realized that kombucha is not enough for my business, and I'm going to thoda sa pivot and add to my portfolio bioenzyme. So she started using the same resources to sort of build a business. So that's the kind of journeys we like to create. Those are the narratives or micro movements, as we call it, we're trying to create. The second is, I think, going back to my point of comparing with startups, we need to localize the entrepreneurship and job creation more and more. We had also done a survey with DIU a couple of months ago, and 9 out of 10 young people in rural India are actually first generation entrepreneurs, because mostly wo agri se hain, or 50% of them are also employing locally. So, just in that to have enterprises that we support has started looking at local markets, local supply chains, and the jobs that are being created also then getting localized. It's something that we believe very strongly, and the sir was also talking about in the previous session ki, log kya kar rahe hain. So a lot of times, even when young people are using technology, they're using it for consumption purposes. Productive use की knowledge इतनी नहीं है कि उसको हम कैसे use कर सकते हैं for productive use. And I think this is where just the access to information, access to understanding how a technology can be used for selling a product that can be used anywhere in the world. I think that's something we work on. And the third thing is, of course, building the ecosystem. The fear factor will really not go away till the ecosystem gets built. And I just want to go back to the point that he had also made about how do you create stronger meso level structures? Government ke bhi kaam mein, district level. I think it's also something your report or the work you're doing. Ki district level ko hum kaise empower kar sakte hain in terms of resources, in terms of decision making, where young people also have a voice is extremely important. Or for example, how do young people connect with young people? I think I'm not sure that they, even though I'm really happy that we were in that group of youngish people, but I think they have the ideas. So how do you turn the leader where you are a mentor or you have a mentee, but you actually have an equal platform, a shared infrastructure? So for example, we've created what we call co-working spaces where young women are connecting to each other at different places. And, it opens up a world beyond even their village. It connects them to each other and their ideas. And I think
that's what we love doing in our work. I'll stop here because I'm guessing that we, again, like I said, I don't want this to become a monologue. So तो जो कनिका ने भी बताया कि किस तरह से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर युवाओं के साथ में क्या इस तरह के इनिशिएटिव्स कर सकते हैं जिससे कि उनको हम लोग प्रोत्साहित कर सकें। एक तो उसके बारे में बात हो रहा था, वो बिजनेस आइडिया कंपटीशन हो गया, या फिर आपका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हम लोग अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और तीसरा बात किया कि भाई वहाँ जिस जिला में वहाँ यूथ रह रहे हैं, युवा रह रहे हैं, उस जिला में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सरकार एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और भी लोग हैं, तो उनके साथ भी क्या मिलकर के कैसे काम किया जाए ताकि जो सुविधाएं युवा को चाहिए वो मिल पाए। तो आई थिंक ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एंगेज कह लीजिए कॉन्सेप्ट है और इनिशिएटिव है जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोशिश किया गया है करने का, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता था कि बिफोर वी मूव टू यंग पीपल, एक बार अनु से भी आई विल रिक्वेस्ट कि हाँ, उसके बाद आपके हम लोग ऑर्डर मैं पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं करूँगा, ये रैंडम सैम्पलिंग है। तो अनु से एक बार थोड़ा सा समझेंगे। एक और प्रोग्राम है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी यूथ नेटवर्क। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये ग्लोबल एक समस्या है, युवा के लिए रोजगार के अवसर ना होना या ना मिल पाना एक ग्लोबल समस्या है। और इसके लिए एक एस्पेन इंस्टीट्यूट है, यूएस का एक बड़ा थिंक टैंक है, एक प्रोग्राम उन्होंने होस्ट किया है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी यूथ नेटवर्क के नाम से, कि किस तरह से इस समस्या को हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो मैं अनु से 10 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 5-10 मिनट में अनु वो मॉडल क्या है और कैसे कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है ताकि युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके, उनको उनका एक्सेस भी कराया जा सके। Thanks, Neeraj. So I wanted to start actually with something that this gentleman from the Selco Foundation had said, Mr. Harish Pandey, who's founded the Selco Foundation. He said that when we move people from rural areas to urban areas, and the example that he gave was from the Northeast. If we're moving young people to urban areas to work in hospitality, in travel, tourism, we're not skilling them in hospitality, travel, tourism. We're actually de-skilling many, many generations of rice farmers. And that value is then just lost when these occupational shifts happen. And that is a very good way to kind of encapsulate the fact that that there's a disparity. So anybody can become an Uber driver, or anybody can become a delivery person. But unfortunately, those things pay, and things that are very, very traditional general wisdom are not able to provide remuneration. So how to conflate the value with the value added? That's kind of one point, and that's essentially what we're trying to do with the GeoVine as well. So how do we consider district as a unit of change, or district में अलग-अलग solutions कैसे ला सकते हैं? तो one of the key solutions जो कनिका ने बोला entrepreneurship, self-employment है. Uske alawa, how can we also increase farm-based income? How can we connect some young people to formal jobs? और डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम हो सकता है, एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख से 4 लाख युवा है, तो उन सब के साथ कैसे काम कर सकते हैं? एक सोल्यूशन, सब एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, सब एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते, सब जॉब्स नहीं कर सकते, तो अलग अलग सोल्यूशंस क्या है वो हम लोग प्लान कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए. तो वो एक्चुअली है GeoVine. और जो कनिका ने ऑल्सो बोला, यूथ वॉइस एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट वी वांट टू वर्क विद. That young people have ideas. 5,000 young people have responded in this report to say what their challenges are, aspirations are, what they think the solutions should be. So young people have the solutions. How do we listen to them and then build it out accordingly? That's one thing. And then the last thing maybe is to think about
working also with government, with private sector, because young people can be skilled. आप स्किलिंग प्रोग्राम कर लोगे, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, पर उसके बाद अगर जॉब्स ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? तो इट्स responsibility mandate sector to support. It's also a responsibility mandate of the government to support. So how can we do these different things with different actors in the at the district level to bring about these large scale shifts, but also work with every young person in a way that no young person is left behind. Everybody is taken forward. How can we have youth hubs जो आप सब चल के या साइकिल करके पहुंच सकते हैं easily? तो वो youth hubs कैसे बना सकते हैं? अलग अलग सर्विसेज जो चाहिए वो कैसे मिल सकती है? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर फाइनेंस चाहिए तो वो इनफॉर्मल फाइनेंस होगा, आप कहीं से लोन लेंगे, कहीं से डोनेशन मिलेगा, ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा मेन स्ट्रीम करके छोटे बैंक में से लोन ले सकते हैं, फिर बड़े बैंक में से लोन ले सकते हैं। वो कैसे ग्रेजुएशन भी होता है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ फाइनेंस, वो भी सोच सकते हैं। तो वो ये अलग अलग जो भी इंटरवेंशन है डिस्ट्रिक्ट के लिए वो हम लोग प्लान कर रहे हैं जियो वाइन में। ये इंडिया में काम चल रहा है, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, अर्बन लोकेशंस में, पर उसके अलावा अफ्रीका में भी काम चल रहा है और साउथ अमेरिका में भी काम चल रहा है। तो जो भी बेस्ट across the network also shared. Young people from all the different countries are going to come to India this year to be able to understand more about India. Last year we were in Mombasa with Neeraj and some of the young people from our other communities. So there's also very rich cultural learning and a rich cultural experience for young people and partners. And the idea is कि जो भी अलग अलग partners है district पे, कोई टाइम पे युवा को पता नहीं होता है कि यहाँ पे ये पार्टनर है, यहाँ पे ये फैसिलिटी है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट प्रोग्राम अवेलेबल है, तो वो सब इंफॉर्मेशन एक जगह पे कैसे कंसोलिडेट करके सब यूथ को दे सकते हैं कि आपको ये सर्विस चाहिए तो ये पार्टनर है, आपको ये सर्विस चाहिए तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ कंसोलिडेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स अनदर पीस ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग। लीव एनीथिंग आउट? हाँ, तो प्लेस बेस्ड इज एक्चुअली एग्जैक्टली जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया कि डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट एज यूनिट ऑफ चेंज है, और हाउ आर वी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज दैट आर क्लोज टू होम, how are we not forcing young people to move out, and how are we creating localized opportunities? So that example that I gave of rice farmers being de-skilled, it's actually not happening that way. It's that the traditional work can be preserved, but also new opportunities can be created at the district close to home, so that it doesn't become that young people are forced to move out because there's no opportunity. If there are very aspirational opportunities, then of course it's of course young people will move out for them, and that it's also natural. And but to be forced out because there's no work, because there's seasonally no work, that is something that we want to stop and create as many opportunities at the place. So it's a very place-based approach. Thanks, Neeraj, for the prompt. And also understanding that every place has different requirements. So अमरोहा में जो challenges है वो रामगढ़ में नहीं होंगे, झारखंड में, या उससे अलावा साउथ में हम लोग रायचूर में काम कर रहे हैं तो रायचूर के challenges अलग है, aspirations अलग है। तो based on the place and based on what young people in that place need, how do we create solutions? And that's going back to my point around listening to youth voice. So understanding from young people, understanding from local governments, from local industries, skilling, academia, all of that, and then pulling the solutions together. सो धन्यवाद अनु। सो ये जो है ना, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात अनु ने कहा। जस्ट एक बार और थोड़ा सा मैं चाह रहा था उसको और एम्फेसाइज करने के लिए। हिंदुस्तान में समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो स्केल है समस्या का, हमारे यहाँ 600 से ज़्यादा ज़िले हैं और सब ज़िलों में अलग अलग तरह की चैलेंजेस हैं। वहाँ पे समुदाय के अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं। कहीं जैसे आपने देखा होगा, कहीं पर महिलाओं को काम करने के लिए समुदाय से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कहीं पर महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। आप देखेंगे कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, वहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर सर्विसेज दे पाता है, कहीं नहीं दे पाता है। तो इस तरह से समाज के स्तर पर, वहाँ पर जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके स्तर पर, और युवाओं के स्तर पर भी, युवाओं के भी एस्पिरेशन अलग अलग होते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए कोई एक सोल्यूशन काम नहीं कर सकता है कि एक चीज़ हम बना ले जो सब जगह चलेगा। तो इसीलिए ये जो प्लेस बेस्ड अप्रोच है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि आपको वहाँ युवाओं के लिए क्या समस्याएं हैं और क्या उनके एस्पिरेशन है, वो क्या करना चाहते हैं, और उसके अराउंड में हम लोग
सॉल्यूशंस बनाए, उसके अराउंड में हम लोग काम करें। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो अनु बता रहे थे, हम उसको और भी एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने 2 मॉडल सुने जो इस देश में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग युवाओं को, और युवाओं में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, उनको कैसे हम लोग जॉब से, अपॉर्चुनिटी से, एंटरप्रेन्योरशिप से, अपना खुद का व्यवसाय चाहते हैं, स्किलिंग चाहते हैं, या नौकरी करना चाहते हैं, कैसे उनको जोड़ सकें। तो दोनों लेवल पे काम कर रहे हैं, युवा स्तर पे भी काम कर रहे हैं उनके साथ में, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं, ताकि इस प्रक्रिया को और हम लोग स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो अब हम लोग थोड़ा सा युवाओं की तरफ चलते हैं, उनसे भी थोड़ा सुनेंगे। हमारे साथ में दीक्षा और निकी हैं, दोनों अमरोहा से हैं, यहीं से पास में से जिला है दिल्ली से, और दोनों ही इन्वॉल्व रहे हैं इस प्रोग्राम में भी, और खुद से एक्सपीरियंस किए हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि खुद से क्या एक्सपीरियंस किए हैं और क्या एक्चुअली युवाओं का परेशानियां हैं इन जगहों पे, और क्या उनको चाहते हैं, क्या उनके एस्पिरेशंस हैं, उसको लेकर के थोड़ा हम युवाओं से भी सुनेंगे। तो पहले मैं निकी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस से बताइएगा कि आप कैसे प्रोग्राम से जुड़े हैं और क्या समस्याएं आपने देखी, और उसका कैसे समाधान हो पाया। Hi, how are you? Just I am fine, and I hope you are all fine. And first of all, thank you for TRI team Amroha district and Mr. Shubham Srivastav ji and all TRI team for giving me this opportunity. And I belongs to Amroha, Uttar Pradesh. वहाँ पे क्या है कि वहाँ देखा गया है कि जो भी ग्रामीण युवा हैं उनके सामने कुछ चुनौतियां आ रही हैं, मतलब रोजगार को लेकर के, या फिर जो अभी तक मतलब मेरे हिसाब से जो देखा गया और मैंने जो मतलब थोड़ा कहीं देखा है, तो उसमें क्या है कि अब तक जो भी है जो युवा हैं, मतलब ग्रामीण युवा है, तो उसमें मेरे हिसाब से कम 50 से और 60% तक अगर उनको उनके सामने चैलेंजेस नहीं आए तो मेरे हिसाब से वो सक्सेस हो जाएंगे, अगर चैलेंजेस नहीं आए तो। लेकिन चैलेंजेस आ जाते हैं तो फिर वो अपना वहीं रह जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि लिमिटेड है एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। सबसे बड़ा चैलेंज बस यही है इसी का कि वहाँ जो है क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो उस तरीके की नहीं है कि हाँ भाई कहीं चले जाओ उसके लिए कुछ करो। वहाँ पर क्या है कि फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जाते तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कह सकते हैं कि जो भी वहाँ के कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ से ही सबको मतलब एजुकेशन मिलता है पहले तो। लेकिन क्या है कि वहाँ फैसिलिटी है हर चीज की, मतलब एक मान लीजिए कि एक सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम है, हर चीज अवेलेबल है। लेकिन वहाँ क्या सबसे मेन जो मकसद है, मतलब क्या वहाँ कमी आ रही है, वो ये आ रही है कि उस चीज को प्रैक्टिकल में समझाना। मतलब हमारे लिए है कि सपोज दैट ये चीज हमारे पास है, अवेलेबल है, रखी हुई है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये भी तो हमको आना चाहिए ना। अब ये थोड़ा ही ना है कि मतलब लिया और उसको रख लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये है कि वहाँ के जो मतलब हर एक चीज अवेलेबल है कॉलेज में है, लेकिन उस तरीके के टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं वहाँ पर, जो कि यूथ है, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो आगे चल के अपना भविष्य क्रिएट कर सके। और दूसरा है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस। इसमें क्या है कि इसमें आता है कि जैसे कि मतलब ग्रामीण युवक होते हैं, उनको मेनली ज्यादा की रोजगार की कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कहाँ हमें जाना है, क्या करना है। और अगर मैं चाहूँ और मतलब हम सब मिलकर चाहें तो इस तरीके से इसको दूर करा जा सकता है। क्योंकि जब तक उन्हें यही पता नहीं चलेगा कि हमें कहाँ जाना है, मतलब सपोज डेट कर लीजिए कि हमें यही नहीं पता कि कौन सी कंपनी में हायरिंग चल रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? कौन सी कंपनी में हायरिंग चल रही है हमें ये नहीं पता, तो हम कहाँ चले जाएंगे बताइएगा। तो इसके लिए भी मैं मानता हूं कि एक ऐसा या तो ग्रुप हो या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो जो उनको डेली नोटिफिकेशन मिले, तो उनके अंदर एक तो उत्साह जगेगा कि हाँ भाई यहाँ से डेली नोटिफिकेशन आ रहा है और हम हैं यहाँ पर हैं, तो शायद वो जाएं, एक कदम थोड़ा आगे बढ़ाएं वो वहां पहुंचने के लिए। लेकिन
क्या है कि वहां तक वो सब चीजें सीमित है नहीं, हो नहीं पा रही हैं अभी तक। और सबसे जो लास्ट में है वो है मतलब स्किल्स जो है वो मिसमैच है, मतलब जो कंपनी है या फिर जो भी है उनकी स्किल्स जो वो मैच नहीं हो पा रही हैं। स्किल्स जो हैं वो अलग अलग है, कंपनी की स्किल्स अलग, डिमांड अलग है कंपनी की, और जो युवा है उनकी डिमांड एक अलग है स्किल्स की। तो ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है कि स्किल्स मिसमैच है, वो मैच नहीं हो पा रही हैं। और जैसे कि मतलब मैं अपने ऊपर ही बताता हूँ, मैंने मतलब क्या एक्सपीरियंस करा है मैं आपको वो बताता हूँ। मैं मतलब आई हैव कंप्लीट माई बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2023 फ्रॉम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। बट क्या है कि वहां से लेके दिल्ली काफी किलोमीटर पड़ता है, लगभग 150 to 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपनी में इंटरव्यू शेड्यूल मेरा हो भी जाता है तो मैं वहां टाइम से नहीं पहुंच पाता, ड्यू टू ट्रेन लेट, ड्यू टू बस लेट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वहां टाइम से पहुंच जाता हूँ, तो मेनली क्या है कि मेरे ऊपर जो सबसे बड़ा रीजन आता है वो आता है कम्युनिकेशन स्किल का। जो इंग्लिश की कम्युनिकेशन है वो बहुत वीक है ग्रामीण की, ग्रामीण युवाओं की। मेरे हिसाब से जो भी है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में या फिर कहीं भी किसी की इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर अच्छी है ना, तो वो मेरे हिसाब से तो बेरोजगार है ही नहीं। अगर आपके हिसाब से किसी के है तो प्लीज बताइएगा। तो अगर किसी की कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की, कोई स्किल्स उसके पास नहीं है, सिर्फ एक स्किल है, सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, वो बेरोजगार नहीं है। ये एक इतनी बड़ी स्किल्स है कि ये आदमी को मतलब एक कदम आगे रखता है तो वो 2 कदम पीछे खींच लेती है। सबसे बड़ी स्किल्स है तो यही है बस। एंड अभी मतलब जैसे कि मैंने वो बीसीए करा हुआ है, तो मेरे को मतलब ऐसा है कि मतलब मैं कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो वहां चला जाता हूँ मैं। ठीक है, मैं घर से माइंड सेट करा मैंने कि हाँ भाई पहुंचना है, आपका इंटरव्यू क्लियर करना है, स्किल्स वगैरह सब चीज़ है मेरे पास, स्किल्स सब चीज़ अवेलेबल्स है। लेकिन क्या होता है जब वहां जाता हूँ तो इतनी हेजिटेशन आ जाती है कि बंदा सामने है कि वो इंग्लिश में बात कर रहा है, मतलब समझ तो पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो इसके लिए भी, और दूसरी जो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है वहां पे ग्रामीण युवकों के लिए, कि वहां ये पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो वहाँ काउंसलिंग का कोई भी प्रबंधन अभी तक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ काउंसलिंग का जो भी इस तरीके का हो, तो काउंसलिंग का हो जिससे कि जो आने वाले युवा हैं वो भी हो मतलब सही डायरेक्शन में जाएं। और जो हमारा अमरोहा है, हमारे अमरोहा में क्या है, मतलब एक सपोज डेट आप कर लीजिएगा कि एक चाल चलन चला हुआ है किस चीज का, कि जो भी सारे युवा हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी ये नहीं सोचता कि हाँ भाई हमें रोजगार की तरफ जाओ, वो सोचते हैं कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, चाहे हम कैसे भी बन जाए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। वो अपना 18 to 20 के आसपास समथिंग में भी 12th पास आउट कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन इधर उधर से करा कहीं से, उसके बाद क्या करते हैं वो अपनी गवर्नमेंट की तैयारी में लग जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हम क्लियर कर लें। लेकिन क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाते हैं कोई भी यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी तो वैकेंसी नहीं दे सकता कि सब लग जाए गवर्नमेंट में। तो सब सोचते हैं तो जिसके अंदर थोड़ा माइंड ज्यादा होगा वही लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि सारे उधर की तरफ जाते हैं। अब क्या है कि उनकी जो मतलब वो करते हैं कम से कम 21 से उन्होंने स्टार्ट करा तैयारी करना, 26 25 तक वो करते हैं, 4 से 5 साल पूरे देते हैं, गवर्नमेंट नहीं लग पाती है। फिर उनके पास क्या रहता है, वो अब उनके उनके दिमाग में क्या माइंडसेट आता है, उनके दिमाग में ये माइंडसेट है कि अब गवर्नमेंट तो लगनी नहीं है, अब प्राइवेट देख लो, कहीं भी धस जाओ, किसी भी लाइन में चले जाओ, किसी भी, क्योंकि उनका क्या हुआ, गवर्नमेंट मिली नहीं। अब प्राइवेट सेक्टर में से भी वो हो गए, वो मतलब वहां भी नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि वो स्किल्स नहीं गेन पाए कर पाए। अगर वो उसी टाइम में 4 5 साल से मे भी नहीं लगेगा, 4 5 साल किसी चीज की स्किल गेन करेगा कोई, तो 1 से 2 साल लगेंगे। लेकिन अगर वही टाइम उधर से हटा के गवर्नमेंट की तरफ से और वो स्किल गेन करने में लग जाए, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उसको सेटल अच्छी तरीके से हो जाएगा वो एट द एंड। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू। तो आपने देखिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बताए और समस्याएं बताई, और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम आपने बताया कि एक तो काउंसलिंग और गाइडेंस का कमी रहता है,
दूसरा फिर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, स्किल है, वो भी उस तरह से नहीं डेवलप हो पाता है। और इसके अलावा फिर जो बेसिक स्किल्स हैं जो आज की 21वीं सदी में आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, वो स्किल्स की भी कमी देखी जा रही है। इसकी वजह से युवाओं को काफ़ी चैलेंज आते हैं एक अच्छा नौकरी ढूंढने में। और इसके अलावा आपने युवाओं के एस्पिरेशन स्तर पे भी बताया कि एस्पिरेशन भी कई जगह पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सरकारी नौकरियों की तरफ एस्पिरेशन है, और उसमें कई साल व्यतीत हो जाते हैं जिसमें कि वो अगर कोई स्किल गेन करते तो और बेहतर जगह पे हो सकते थे। तो अब हम लोग चलते हैं। Sorry, can I just हाँ। come in on this? I really liked what you said कि skill mismatch है. And I think we need to focus a bit on that. Yeah. कि you know what is the mismatch? Where is the gap in the system there? नहीं, एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बात किया गया था कि स्किल मिसमैच है, किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत है और किस तरह के स्किल्स हमारे युवाओं को दिए जा रहे हैं, उसमें भी चैलेंज है। तो एक हम लोग कोशिश करते हैं इसको कंटिन्यू करते हुए, ताकि हम लोग और इसको सेशन को अच्छे से बढ़ा पाए और समझ भी बना पाए। तो मैं दीक्षा से रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपने भी ये सभी संघर्ष जो निकी बता रहे हैं आपने देखे होंगे। बट बीइंग यंग गर्ल, एक युवा महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या चैलेंजेस हैं और महिलाओं के क्या एस्पिरेशंस हैं जो आप देखते हैं आपके आसपास में, क्या करना चाहते हैं और क्या समस्याएं, अगर आप उस लेंस से थोड़ा बता पाए, महिलाओं के लेंस से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं दीक्षा। मैं कहना चाहूँगी कि युवा गर्ल्स बहुत ही वीक हैं ग्रामीण एरिया की। उन्हें फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं वो चाहती हैं। कुछ हैं जो ग्रेजुएशन करती हैं बट उससे आगे वो पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि एक चीज़ ये है कि ग्रामीण के महिलाएं घर पे ही बोलती हैं कि घर पे काम करो, घर ही रहना बेटर होता है, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। ये चीज़ें बहुत आती हैं, पर मैं अपने आप को इतना अच्छा मानती हूँ कि मुझे अपनी मम्मी के थ्रू, मम्मी मेरी समूह में है, उनके थ्रू, उनकी जो सीनियर्स हैं एनएस के, शायद आईएनएस के, उनके थ्रू यहाँ पे टीआरआई में आई हूँ मैं। मुझे अच्छा लगा बहुत यहाँ पे आके, और सर ने भी बहुत अच्छी, जो सर पहले बता के गए थे, बहुत अच्छी बातें बताई थी। और मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे ग्रामीण एरिया में जितना स्वभाव मिलना चाहिए लड़कियों को, जो मिल रहा है, सब लोग चाहते हैं वो मिलना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि लड़कियाँ कुछ करने आगे बढ़ती हैं, वो करना भी चाहती हैं, फिर वो बीच में ये सोच के रुक जाती हैं कि अगर हम गवर्नमेंट में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है कि लाइफ सेटल हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भी गवर्नमेंट प्राइवेट के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब यहाँ पर कितनी सुविधाएं होती हैं, कि प्राइवेट गवर्नमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट में भी होना चाहिए। और उनके आगे ये भी आती हैं कि ग्रेजुएशन कर लो फिर तो लाइफ मतलब शादी वगैरह हो जाएगी, अधिकतर तो यही होता है गाँवों में। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यूथ गर्ल्स के लिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ होना चाहिए। और जैसे निक्की भैया ने बोला था कि क्या बोलते हैं, करियर काउंसलिंग, करियर के बारे में वहाँ पे नहीं पता चल पाता है कि युवाओं को या गर्ल्स को भी नहीं पता चल पाता है कि हमें अपनी लाइफ में आगे करना क्या चाहिए। वो एक ही जगह रुक जाती हैं कि क्या सोचते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए वो चीज़ें जो हम कर पा रहे हैं। तो मैं भी बीसीए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे गर्ल्स बहुत एक्सेप्टेड हैं हमारे यहाँ की, कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी, मतलब चैट जीपीटी चल रहा है आजकल, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए भी बहुत चीज़ें आ रही हैं, तो वो हमारे यहाँ पर होनी चाहिए सब चीज़। ये नहीं कि मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ, सभी लोगों के लिए, सभी गर्ल्स के लिए। और क्या बोल कहती हैं कि हमारी चुनौती यही आती है कि पहली बात तो हम बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि गर्ल्स के लिए यही मेन प्रॉब्लम होती है कि बाहर मत जाओ। सबसे ज़्यादा यही चीज़ें आती हैं, दिक्कतें, कि बाहर जाओगे ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, फैमिली वाले। पर मैं इतना खुश अपने आप को अच्छा मानती हूँ कि मैं बाहर आई हूँ। और मैं एक बात करना चाहूंगी स्पोर्ट्स के ऊपर, कि हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स स्कूल्स में अलेवल ही नहीं है, मतलब है तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता। नॉर्मल बस ग्रेजुएशन कर लो, पढ़ लो, बस यही होना है। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, और है भी हमारे यहाँ के बच्चों के अंदर,
कि मोहम्मद शमीम है, वो भी हमारे यहाँ से गए, बट उन्होंने बाहर कोचिंग करी, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वो इंडिया के। मैं ये भी चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स में गर्ल्स भी अवेलेबल हों आगे के लिए, उनको भी कुछ थियोरेटिकल या अपॉर्चुनिटी मिले कि वो खेल कूद के लिए अच्छी प्लेयर्स बन सकती हैं। और सो थैंक यू सर। अगेन तो इम्पोर्टेंस आप लोगों ने बातें शेयर की, और ये एक्चुअली हम लाना चाहते थे कि किस तरह से, जो आपने रिपोर्ट में तो समस्याएं देखी जो हम लोगों ने निकाली हैं, पर एक बार अगर हम लोग युवाओं से भी समझे कि इस तरह की समस्याएं जो वो डे टू डे बेसिस पे झेलते हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जा सके अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कंटिन्यू करते हैं हुए कन्वर्सेशन। हम लोगों ने समस्या की बात की, पर जैसे आपने बताया कि आप बाहर निकल पाए, आपने एक्सेस कर पाए, नारी शक्ति केंद्र के थ्रू आपने सब अपॉर्चुनिटीज एक्सेस करी, ऐसे ही आप भी कर पाए। तो ऐसे क्या इंटरवेंशंस हुए थे आपके क्षेत्र में जिसकी वजह से आपको जो ये चैलेंजेस आप फेस करते हो, वो चैलेंजेस से उभरने में मदद मिली? ऐसा क्या होने से वहाँ ठीक हो पाए सिचुएशन, या आपको इनेबल कर पाया है जिससे कि आप अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जान पाए और आगे कदम बढ़ा पाए उसके लिए? तो आप में से दोनों में से जो भी शेयर करना चाहे इसको लेकर। सर ये भी कह सकते हैं कि हम करियर के लिए मतलब थोड़ा ये होता है कि बाहर निकलो घर से तो पता चलेगा, पर ये भी है कि यहाँ पे नारी शक्ति केंद्र है हमारे अमरोहा में, उसके थ्रू पता चला था और अच्छा भी लगा। मैं मम्मी के साथ जाती थी कभी कभी, तो मम्मी बोलती थी बेटा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, घर पे कुछ नहीं होता। और ये भी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा कम है उसका मतलब डेवलपमेंट उसके लिए, नारी शक्ति केंद्र के लिए, और होना चाहिए कि जो सभी, मैं यहाँ आई हूँ और लड़कियां भी आए, सो इसीलिए। आप देखिए कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? आपके हिसाब से आपके यहाँ पे आपने कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स देखे हैं, या इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स हुए हैं अमरोहा में, आपके आसपास में, जिससे कि युवाओं को ये समस्याएं आपने बताई उभरने के लिए मदद मिलती है, और हमने सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखे हैं इस? हाँ सर, क्या है कि जो हमारा ये यहाँ पर कैलसा पर, अमरोहा कैलसा में एक नारी शक्ति केंद्र है। ये टीआरआई की तरफ से जो है, इसकी तरफ से बच्चों को टीआरआई की तरफ से इतना कह सकते हैं कि 60% तक लाभ मिल रहा है। क्योंकि उनको अभी तक तो यही नहीं पता था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें होता है कि ये मंथ में 1 या 3 टाइम्स तो मीटिंग कराते हैं, और उसमें क्या है कि उनको सपोज दैट जैसी उनकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि उस कंपनी में हायरिंग चल रही है, वहां पे रिक्वायरमेंट है, आप वहां जाइएगा। और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्होंने लगभग 50 स्टूडेंट को सेटल भी कहीं ना कहीं कराया। क्यों शुभम सर? इन्होंने कहीं ना कहीं इतने बच्चों को सेटल भी करा दिया टीआरआई की तरफ से। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर टीआरआई और थोड़ा सही काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा और करे तो और जो वहाँ के बच्चे हैं वो भी सुधर जाएंगे। तो बिल्डिंग ऑन दैट, ये जो मॉडल का बात कर रहे हैं ना, आई विल कम टू अगेन, इट इज आई गेस टीआरआई के साथ में वहाँ काम हुआ है, तो इस वजह से बात चल रहा है। बट ये जो मॉडल्स का बात हो रहा था कि जो हम लोग चाहे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी यूथ नेटवर्क वाला मॉडल है या वर्क फॉर प्रोग्रेस का मॉडल है, तो वहाँ जो ये समस्या हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे युवाओं को गाइडेंस और काउंसलिंग मिल पाए। तो एक उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो नारी शक्ति केंद्र का बात हो रहा है, ये किस तरह का मॉडल है कि किस तरह से हम लोग युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए इस तरह की एक जगह बनाएं जहाँ पर वो लोग आकर के अपने लिए अवसर को लेकर के जान पाए क्या अवसर हैं, और जो करियर गाइडेंस और काउंसलिंग की बात हो रही है वो काउंसलिंग और गाइडेंस उनको मिल पाए। दूसरा है वो अपने आप को बेहतर समझ पाए, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पे उनको काम करने का ज़रूरत है। तीसरा है कि वहाँ पर एक सेफ एनवायरनमेंट मिले जिससे आपस में बातचीत कर करके और नए आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। चौथा जो बात हो रहा था कि जो 21st सेंचुरी स्किल्स का बात हो रहा था कि आज की सदी में अगर आपको कोई भी काम करना है
तो जैसे अभी दीक्षा भी बता रही थी, चैट जीपीटी आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो अब हमारे पास इस तरह की नई तकनीकें आ गई हैं जो कि जिस तरह से हम लोग पहले काम करते थे उसमें काफ़ी बदलाव ला रहे हैं। तो उस तरह के मिनिमम स्किल्स जो आपको चाहिए, चाहे आप कोई भी काम करें, उससे वहाँ मिल सके। तो ये जो एक है ना, ये जो प्रोग्रेस दोनों ही मॉडल्स का एक जो यूनिक फीचर है कि इस तरह के हम लोग कुछ सेंटर्स बनाए जहाँ पर कि युवाओं को अपने घर के आसपास वो अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। तो एक जो कोरिलेशन आप देख पा रहे हैं कि जो मॉडल्स के बारे में पहले बता रहे थे और कैसे वो युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक एक पहलू था जो मैं चाहता था जिस पे और थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालें। तो कमिंग बैक टू देन कानिका एंड अनु, आपने जो सुना भी, युवाओं से चैलेंजेस सुने और हम लोगों ने जो मॉडल के बारे में बात किया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मॉडल्स हैं इसमें क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं या क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इसको सक्सेसफुल बनाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग इनको यू नो एक लार्ज स्केल पे ले जाने के लिए बात कर सकते हैं? तो क्या कंपोनेंट्स हैं जो सक्सेसफुल बनाते हैं और कैसे हम लोग इनको पूरे भारत के लिए एक मॉडल की तरह बनाएं या पूरे भारत में स्केल कर पा सकते हैं इन मॉडल्स को? Thanks, Neeraj. I mean, I feel like it's our responsibility to respond particularly to the questions जो आप लोगों ने raise किए कि मतलब and what are the and I mean how we're going to move forward अगर ये challenges continue होंगे. I think one thing that's emerging more and more is that ये जो थोड़ा सा if I may say so training mindset जाना पड़ेगा, हमें let go करना पड़ेगा. And that's what we've been trying to do. People learn all the time now. You know, you're learning from your phone, you're learning from YouTube, you're learning from so many different sources. And I think how we learn, what we learn, though we can't really control. I mean, there's just a lot of information out there. So जो information asymmetry की इन्होंने बात करी कि लोगों को पता ही नहीं है कि information कहाँ है, या फिर वो जो एक्सेस है जो स्किल्स के या टेक्नोलॉजी के वो लोगों को पता ही नहीं है. तो आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दैट, वी नीड टू बिल्ड बेटर कनेक्शंस टू दैट. एंड वन ऑफ द थिंग्स वी डू इज जो कियोस्क्स होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं लास्ट माइल पे, विच आर बेसिकली कॉमन सर्विस सेंटर्स जो सिटीजन सर्विसेज देते हैं, उनको हम इन्हांस करते हैं ताकि लोगों को जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए एक बिजनेस लगाने के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के एक्सेस के लिए, एक क्या क्या प्रोसेसेस यूज करते हैं, उस पे हमारा काफी फोकस है. सो दैट आई थिंक वी नीड टू मेक श्योर दोस लास्ट माइल कनेक्शंस आर देयर एंड इट्स वेरी रेप्लिकेबल. आई मीन इफ यू जस्ट लुक एट हर एक डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर्स है, you just need to build, you just need to move that forward. If they just retain at this level, we won't be able to solve this, and it's an excellent infrastructure to do that. I think the second to what Diksha talked a little bit about कि safety का जो issue, right? I mean इस day and age में अभी भी लड़कियां निकल नहीं सकती हैं, लड़कियों का बोला जाता है कि आप नहीं कर सकते कुछ, आप क्या करोगे? I still remember एक cluster level federation में एक member थी, इनफैक्ट बहराइच में हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला मेरी बेटी बहुत खुश है बिकॉज अब वो ऑनलाइन पढ़ती है. And she doesn't have to worry about कि वो अगर निकलेगी घर से तो she'll be like harassed or the boys will trouble her. I think it's not an either or situation. I think we have to do both. So I think how we can get more access to online content for young women is important, which we're trying to do through our kiosk networks or some of our district level platforms, but also safety, connectivity in that sense. So one of the things that we've started doing is that we've created an e-rickshaw program where women are now driving these e-rickshaws, and we've tried to create a whole ecosystem around it. So उससे क्या होता है कि जब एक औरत एक ई-रिक्शा चलाती है तो आपको सेफ लगेगा जाने के लिए, right? I mean it just changes the whole the way we sort of move या फिर हम कैसे रहते हैं. So I think that's extremely important. And we have to have the belief that women will have the answers themselves. Young people will have the answers themselves. These are 110 women just in the district of Mirzapur जिन्होंने decide किया कि अब बहुत हो गया, हम solve करेंगे. और उन्होंने connections बनाए, उन्होंने schools और colleges, nursing centers को connect किया
ताकि जो लड़कियां ड्रॉप आउट करती हैं वो ड्रॉप आउट ना करें सेफ्टी की वजह से. सो आई थिंक क्रिएटिंग दोज कनेक्शंस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अस. एक लास्ट पॉइंट जो मैं नीरज आपका कह रहे थे, आपने रेप्लिकेट कैसे हो सकता है. So I think even Anu had mentioned a little bit about it, that for us the whole approach is not कि हम एक हर context अलग है. And what we're trying to do now is that how do you take the process behind it, give it in the hands of young people, और या फिर जो women's group हैं और वो करें जो हम करना चाहते हैं. I think time is running out. We have to we'll just have to sort of do it. One of the things we've also been studying a lot is basically what happens when you go to this demand mindset and aspirations. When aspirations shift and enterprises start getting created, jobs getting created, we're now at least looking at a minimum of 2 jobs per of the enterprise we're creating, and then the economy starts changing in the district. We've, in fact, with Global Opportunity Youth Network and TRI, we're also trying to now see कि एक डिस्ट्रिक्ट में वो इन्फेक्शन पॉइंट क्या होता है, वो कौन सा पॉइंट होता है कि जहाँ से अपने आप ही चीजें होनी शुरू हो जाती हैं. सो आई थिंक इफ वी हैव टू replicate this or duplicate this, then we really will need to understand, and I think then we could take that sort of thing to other spaces. So yeah, Anu. Anu, you'd like to add to respond to the same question? It's about, you want to respond to any of the challenges that the youth have raised, या जो मॉडल के बारे में भी बात कर रहे थे कि कैसे ये जो मॉडल है ये सक्सेसफुली एड्रेस करता है इन चैलेंजेस को. फॉर एग्जांपल, हाउ वी आर लुकिंग एट एड्रेसिंग दीज इश्यूज थ्रू GeoVan in India and also in other communities. और ये जो क्या इसके क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, क्या सक्सेसफुल एलिमेंट्स हैं जो इसको इफेक्टिव बनाते हैं मॉडल को. तो एक तो है यूथ हब्स जो मैं बोल रही थी, जो आप नारी केंद्र भी बोलते हैं. How can each young person reach that easily by walking or by cycle? It should be accessible for each young person. There shouldn't be a single young person who cannot access. So that is the objective. That's one thing. The second thing is कि mentorship ongoing अगर process है तो वो beneficial है. अगर कोई है बात करने के लिए मैं करियर में क्या करूँ, मैं ये application करूँ, मैं ये एग्जाम दूँ, तो वो हेल्पफुल है. क्योंकि समटाइम्स पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि न्यू जॉब्स क्या है, नए अपॉर्चुनिटीज क्या है, नए ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है. और अगर मेंटरशिप है ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस तो वो भी हेल्प करता है. आई थिंक एज कनिका ने बोला, टू एड्रेस द सेफ्टी इश्यू, absolutely creating these safety mechanisms and at the same time complementing that with also family level counseling कि मम्मी पापा को कैसे समझा सकते हैं कि अभी बाहर जाना थोड़ा सेफ है, यहाँ पे ये कॉलेज में ये स्ट्रक्चर है, उन्होंने अगर कभी देखा नहीं है तो कैसे उनको भी थोड़ा काउंसलिंग कर सकते हैं. सिर्फ यूथ को काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, फैमिलीज को भी है, कम्युनिटीज को भी है. और जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा कंटेंशियस शायद है. इंग्लिश जो है वो एब्सोल्युटली बेनिफिट करता है जॉब पाने में, पर जो अभी सबसे बड़े कंपनीज है वो लोग एक्चुअली इंग्लिश को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं. अगर आपके टेक्निकल स्किल में एकदम स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश बिकम सेकेंडरी, अनलेस a very large part of your job is writing reports or customer facing, or you have to write like very long reports, then it becomes difficult. But actually, if you're very good at coding, then no one cares if you don't know English. Or if you're the best beautician in the parlor, then no one cares if you don't know English. If you know where all of the materials are, all of the products are in the shop, and you can point customers to it, you remember customers' names, you remember their preferences, उनको क्या पसंद है, नहीं पसंद, टाइम आते हैं कि इनको मैं automatically उनको, then they don't care. They want that good service and they want that good kind of competent worker, and so that's what employers are caring about more and more. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंग्लिश महत्वपूर्ण नहीं है, स्टिल इम्पोर्टेंट है, पर अभी जो टेक्निकल स्किल है उसको रिप्लेस कर रही है थोड़ा. तो अगर इंग्लिश का इतना एक्सेस नहीं है तो ये भी एक दूसरा ऑल्टरनेटिव पाथवे है कि एकदम अपने जो टेक्निकल स्किल्स है वो एकदम शार्पन करो. एंड एज कनिका सेड दैट देयर इज लर्निंग अवेलेबल ऑन यूट्यूब, देयर आर नाउ ओपन यूनिवर्सिटीज, there are now online courses that are available, so there are many different ways and we are all learning. Even Instagram में से constantly learning होता है if you're following the right pages. तो ये अलग अलग चीजें हैं, there are many different factors to it, but just to kind of emphasize कि English important नहीं है.
address Yeah. this point because I really wanted to, or because you know I saw there was a lot of pain in that point. Yeah. And it should be. I can imagine. You know, it excludes you. You know, a language in this country has become an instrument of exclusion. And I wanted to address it because But many company so they still do. Yeah. Bilkul. And usme I think Anu, I totally agree. Because I think technical skills sharpen करना ये बहुत important होगा. लेकिन I think again वही situation है कि इधर और नहीं होगा. I think there is a little bit of shift that's happening where again I want to go back to the point that even Neeraj had made ना कि अगर आप jobs और enterprises को localize कर दोगे तो ये तो हमने एक आर्टिफिशियल वो बनाया हुआ है ना कि हमें यहाँ से लेके यहाँ जाना है और उनकी जो भाषा बोलते हैं या वो जो चाहते हैं हम वो करें. So I think this has become extremely important. This whole thing of centralizing or where the central forces are, ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. तीसरा है कि जो टेक्नोलॉजी की हमने बात करी जैसे ChatGPT है and all of that. The challenge is कि these technologies need to be used अपनी human capacity बढ़ाने के लिए. ये नहीं कि किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसने बोला कि अच्छा ये चीज इंग्लिश में लिख दो, ये तो और भी डेंजरस साइन है. सो आई थिंक मोर अबाउट कि मेरी कैपेसिटी कैसे बढ़े इससे. कैन दिस मेक मी हेल्प लर्न इंग्लिश इफ आई नीड टू लर्न इट और इवन अदर लैंग्वेजेस, राइट? आई मीन अब तो इतना कुछ कनेक्टिविटी हो गया है कि आप मतलब साउथ में कैसे कनेक्ट करोगे फॉर एग्जाम्पल. Maybe in English, but maybe not, maybe in other ways also. So I think we do have to see कि connections कैसे form हो सकते हैं through the technology. Yeah, connection beyond language. So I think थोड़ा सा we'll have to think about that. Sorry, I really wanted to नहीं address बहुत that point. जरूरी पॉइंट था. सो थैंक यू. सो अब समय की बाध्यता को देखते हुए मैं जस्ट कोशिश करूंगा कि जो पॉइंट्स निकल के आए, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे निकल के आए, उसको थोड़ा समराइज करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे फ्लोर को. आपके कुछ सवाल हो उनको लेकर के उस पर चर्चा करेंगे. तो एक ये जो हमने देखा आज दिन भर का जो हमारा कॉन्वर्सेशन था, अगर उसको निचोड़ निकाले और जो खासकर अभी बात हुई कि युवाओं के बहुत सारे चैलेंजेस हैं. आपने सुने चैलेंजेस, स्पेशली और ज़्यादा चैलेंजेस हैं और ज़्यादा इश्यूज होते हैं. तो इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए लार्जली जो देखा गया है कि हमको 3 तरह की चीज़ें देख सकते हैं. पहला तो ये है कि भारत में कोई एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है पूरा भारत के लिए, तो आपको लोकलाइज सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे. जैसा सब लोगों ने बताया भी कि वहाँ क्या युवाओं के एस्पिरेशंस हैं, वहाँ क्या चैलेंजेस हैं, वहाँ सिस्टम कैसा है, उनके पास किस तरह के संसाधन हैं, वहाँ किस तरह की चीज़ें चल सकती हैं. तो उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के लिए हम लोग समाधान करें. तो एक ये कि निकल के आए कोई भी सोल्यूशन अगर बनाना है भारत के लिए तो ये एक उसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रहेगा. दूसरा हमने देखा कि युवाओं का पास एक्सेसिबल सुविधाएं होना चाहिए जिससे कि वो उन सुविधाओं को ले सके. अगर कोई भी युवा या युवती चाहती है कि वो नौकरी करना चाहें या फिर वो ये जैसे बता रहे हैं कोई स्किल सीखना चाहें या अपना खुद का कोई व्यवसाय करना चाहे, तो उनके पास में ये सुविधाएं होना चाहिए कि उनको इसके लिए सपोर्ट मिल पाए. चाहे आपने सुना करियर गाइडेंस हो, कहाँ जाना है, क्या कौन सी नौकरी देख सकते हैं, या अंग्रेजी सीखना हो या और कोई स्किल सीखना हो जो कि आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगा, अपना पर्सनालिटी डेवलप करना है, कुछ टेक्निकल स्किल सीखना है. तो एक इस तरह की जगह की जरूरत है जहाँ पे युवा जा सकते हैं, जहाँ वो पहुंच से हो. ऐसा भी ना हो कि वो जिला हेडक्वार्टर पे हो तो जो कि 90% युवा पहुंच ही ना पाए. ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर कि वो पहुंच पाए, वो जगह को अपना कह पाए, वहाँ पे बेहिचक जा पाए, वहाँ वो जो सारी चीज़ें करना चाहते हैं अपने एस्पिरेशन को पूरा कर पाए और ज्ञान ले पाए, एक दूसरे से मिल पाए, अपने एस्पिरेशंस को समझ पाए. तो इस तरह की एक जगह होना चाहिए जहाँ उनको ये सारी सुविधाएं मिल पाए. तो ये एक दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू निकल के आया कि ये करना पड़ेगा. और तीसरा जो बोले कि लोकल पाथवेज, जैसे हर जिला के लिए, हर जगह के लिए अलग अलग तरह के अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं. जैसे कनिका बता रही थी कि ई रिक्शा का सोल्यूशन हो सकता है. वहाँ अगर हो सकता है युवा ज़्यादा इंटरेस्टेड हो अपना खुद का व्यवसाय करने में, कहीं हो सकता है कि युवा इंटरेस्टेड हो रोजगार के लिए. तो वहाँ के लिए लोकल क्या सोल्यूशंस, क्या पाथवेज होने चाहिए वो देखे जाए, उनके ऊपर काम किया जाए और उनको बनाया जाए.
तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी अगर सोल्यूशन भारत के लिए करना है, खासकर ये जो समस्या है, जटिल समस्या युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, तो एक लेवल पे हमको इस तरह से प्लेस बेस्ड सॉल्यूशंस की जो बात कर रहे हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। और एक जो दूसरे लेवल पे बात हुआ कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, जो हमने देखा भी कि भाई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको स्किल्स देते हैं, ज्ञान देते हैं, एजुकेशन देते हैं। दूसरी तरफ आपके कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं जो कि जॉब्स देते हैं, स्किल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्किल्स देते हैं, सरकारें हैं जिनके पास में बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं। इन सब के साथ मिलकर के एक प्रोग्राम बनाना पड़े जिससे कि युवाओं को पूरी जो जर्नी होती है उसमें हर जर्नी के हर पहलू पे उनको सपोर्ट मिल पाए। तो इस तरह के मुझे लगा कि 4-5 मुख्य जो एलिमेंट्स निकल के आए, जो हम लोग बात कर रहे थे। कोई भी सक्सेसफुल प्रोग्राम अगर होना है भारत के लिए तो उसमें ये कंपोनेंट्स होना बहुत जरूरी है, जिसको कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो विद दिस मैं सेशन को ऑफिशियली ओपन करूंगा। अगर आप लोगों ने जो सुना, आप लोगों के किसी पैनलिस्ट को लेकर के या फिर इन जनरल इस टॉपिक को लेकर के कोई सवाल हैं जो आप चाहते हैं, तो उसको हम लोग ले सकते हैं अभी। जैसा निकी ने कहा कि इंग्लिश ना जान पाना या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेसिफिकली ना जान पाना उनके लिए एक प्रॉब्लम की तरह आया, डिस्पाइट हैविंग द स्किल्स टू एंटर अ स्पेसिफिक जॉब. And then, as you mentioned, कि after a point, if you have enough technical skills, then your English communication skills won't matter so much. But in India, a lot of the technical skills that are deployed in the first place, that continues to be in English. So, जो वो skills सीख सकते हैं, वो तो सिखाया ही नहीं जाता अधिकतर बार English में. So it still continues to hold precedence over that problem. It's not just कि वो technical skills उनके पास हैं और English communication skills की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे. It's कि वो skills ही absorb नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका English के अलावा बाकी languages में उतना होता ही नहीं है deployment. So that continues to be an issue. For example, you said coding. Coding is usually in English. So अगर किसी का English communication skills नहीं है, that I think comes secondary. उनका education English में हुआ हो सकता है, उनकी communication skills weak हो. But अगर उनको English ही नहीं आती हो तो वो coding या आजकल जो ज़्यादा technology based jobs होता है तो वो take up कर ही नहीं सकते. And this is a problem that is largely in India only. Like बाहर देशों में बहुत सारी उनकी पढ़ाई अपनी भाषा में होती है. आई अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं बट स्टिल लाइक वो अपने भाषा में पढ़ते हैं, सीखते हैं और उनको आराम से नौकरी मिल जाती है. उनका ये इशू नहीं आता कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो वो करियर एडवांसमेंट नहीं हो सकता और दे कांट होल्ड प्रोमिनेंट जॉब्स. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट वी आर कॉलोनाइज्ड. जो एक इंग्लिश का यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ और इंग्लिश इतना वाइड स्प्रेड हुआ और एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, फॉर्मलाइजेशन लाने के लिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया. बट अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं था कि वो डिसेमिनेट हो गया, वो लोगों को सीखने को मिला. आज के दिन में लाइक आई कम फ्रॉम a medium rated college from DU and I don't want to make myself sound like the upper part of it, but because of my background, because of my education, I still feel like my peers who are at an urban university or at an urban college, despite the fact that they know English, they've come from an English medium education, they're still not able to grasp a lot of things that are relevant. So I think it's a bit unfair or unreasonable to expect कि जिन लोगों के पास उसका बिल्कुल भी access नहीं रहा है कि in the name of having skills बस English ना होने से वो आगे बढ़ सकता है. I think that's something that we need to work on. So yeah. Sure. So that's yeah. So that's a really valid point. Thanks. So there's a few ways to kind of break this up, right? One is that
it's also a difference between comprehension and reading and speaking, because many people will be able to read or understand but not speak. So what is the skill set that's required in that specific job? I think that's one thing to like maybe break it up a little bit more. If, for example, young people are using Instagram or like ChatGPT or like PUBG, then they'll know like basic English. So I think that then shifts. If you know enough English to code, then that's enough. That being said, however, comms heavy jobs, and as you said, like the colonized, all of that, that becomes tricky. It also becomes tricky to work in global environments where there are many conversations that you have that you miss out on the nuance of, and you get left out, and then there's no growth pathways. So I think that it becomes tricky for some jobs, not some. Second thing I want to say is that, as you very rightly said, that most countries will language or language, there is much more precedence over that. I think that's happening to a very small extent over here. And ironically, it's also led by the large MNCs. So like, for example, like a Google won't care if like you can't speak English, like they will grade you on your coding skills, right? So it's that influence is there at the top MNCs, and in the tech space, it will obviously take time to percolate down to like the much smaller companies that we are looking at, and the SMEs, and also like based in like rural peri-urban areas. But that trend is starting globally where there's more importance on skills. So that's another contributing factor. However, don't want to minimize at all that like it is absolutely a just like value add if you have the English. And if that's missing, then how do you either catch up on it, or how do you find alternatives if it's not possible to catch up on it? Yeah, but I just want to also, may I just address Yeah, a yeah, of point course. about the fact that even the training that you're receiving, or even the counseling you're receiving, or the material that you have is mostly in English. Now, this is a brilliant example of how you could use technology to convert it into the vernacular, so that it opens up the possibilities of enhancing your skills. Instead of you, like I said, there is a difference between saying, oh, how do I, can you do this in English? But actually, or dumbing yourself down by understanding what this technology is telling me, or ChatGPT is telling me. And, using ChatGPT, not ChatGPT, but AI to convert it into the vernacular. And I think this is where the opportunity is. So I really think you sort of pinned down on how perhaps we need to look using technology to bridge the divide that exists. Any other question और किसी को भी सवाल है? I think Neeraj, there was one. Yeah. Am I audible? Yeah. So my name is Mohammad Rian, and I also belong to UP Amroha only. Born and brought up in that county. And what I observe is there is a lack of connectivity between the things that are being produced in that area. For example, Amroha is famous for making bullocks and there are many products that are being manufactured in that area. But where we are lying behind is that we are lacking in the connectivity between the manufacturers and the there should be a more exposure to the connectivity of market, so that the people who are manufacturing it can be more benefited from what they are producing. Yeah. So that's a very good point. And just to give an example, that not all communities will need all support. So if there are very skilled communities that are manufacturing the dholaks, for example, then they don't need support on training, because it's already generational and it's already in the family, and like your grandparents will also know, great grandparents will also know. So then the training component is not as important, but what could be important is the marketing component, or how do you finish it so well so that the product looks so good that it can go to like big cities, or it can go to like it can go abroad, or it could also be like the packaging, so that the product doesn't break when you're sending it to long distances. So that's why I think that customization and that tailored support, okay, what do you specifically need to make your business successful? It could be as simple as supporting people to start up an Instagram page and generate a kind of traffic over there. Because if you have organically people coming to your social media page,
then you automatically start getting, you can sell directly to customers. Then they can send you, orders on WhatsApp or an Instagram message, and then you can post them directly. Then you don't have to go through a wholesaler. So the idea is to understand what are the gaps to make your business or to make your work successful, and then support with those gaps, which is exactly what you said, that in your case, it could be a gap between connecting to market. So then how do we bring support around that? So that is then again like tailored support, connecting to like different virtual platforms, to like physical markets, to a smaller extent also supporting with like setting up like exhibitions, setting up like a small like online shop, things like that can be done, especially since the product is already a high skill product. What is happening is the people who are manufacturing the product are not getting actual, are the actual beneficiaries of the benefit that the product earns. But what is happening is the middlemen are exploiting the real workers who are manufacturing it, and all the advantage going to the middlemen only. So we are losing our cultural work for what our place is famous for. Yeah. I think I think what we've done with digital payments in India with the shared infrastructure has really transformed. मतलब अब हर किसी के पास उनके फोन पे है कि वो पेमेंट कैसे करते हैं, all that connect. I think there is a movement to use ONDC. I think we still are trying to figure it out how it will work, but there is an attempt in that direction. कि अगर आप you cut through the intermediary and you sort of connect it. I think how do you really cut through it? I'm not sure I have the answer today, but it's something for us to think about. मतलब अगर वो ही same intermediaries अगर उन लोगों को ONDC पे डाल रही है, then it won't really benefit. So I think again, it's something for us to think about. So actually Bengal में जो जामदनी sarees है ना, they are very specialized over there. उनका thread count बहुत high होता है. जैसे आपने बोला था ढोलक is from Amroha, तो वैसे वहाँ पे sarees है. So the only intervention that those women needed was to open an Instagram page. They were slightly older women, so they didn't know how to use social media. So the only intervention they needed was to open an Instagram page and to build a large audience. And once that was done, then their profits increased also by many times, because then they start getting requests for orders on direct messages on WhatsApp. So वो क्या specialized requirement है and how it can be supported based on what is the age group of the people, what is the where are they struggling to find this intermediaries to increase the profit. It can be answered like that as well. I visited Delhi Hart INA, their Rulia village. So I saw Dholak that was manufactured only in Amroha. And I belong to Amroha, so I know what is the real price of this. And it was selling for 1,500 rupees, and it was small Dholak, which cost around 150 to 200 only. And I was surprised, like what is happening, that real people who are manufacturing this are not getting benefited from the product. So I think that building the gap between these is a very crucial step that we need to take. So very important point. We have to also think of the entire value chains. पूरा value chain को देखते हुए वहाँ कहाँ opportunity हो सकती है productivity enhancement के लिए, value addition के लिए. So I think that is also very important. और जब हम लोग ये localized जो बात कर रहे थे, जो आप उस जगह के लिए, जैसे आप इधर के लिए बात कर रहे हैं, अमरोहा के लिए या सदर्न स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, उस जगह के लिए किस तरह का प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह के वैल्यू चेन्स हैं, किस तरह के स्किल्स हैं, और कैसे हम लोग उसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ा पाएं. तो हम लोग को उस तरह से सोचने की ज़रूरत है अगर हमें भारत में इस जटिल समस्या को सुलझाना है. तो इसके साथ ही हमें ये सेशन कंक्लूड करना पड़ेगा. और क्वेश्चंस हम लोग नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ समय की थोड़ी पाबंदी है. पर बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अनु, कनिका, दीक्षा और निकी आपका, कि आपने अपना समय दिया और ये सारी आपकी जो इनसाइट्स हैं वो शेयर की. मुझे उम्मीद है आपके लिए आज का पूरा दिन सदुपयोग अपने अलग अलग स्पीकर्स को सुना, अलग अलग पर्सपेक्टिव को सुना, और रिपोर्ट्स भी आपके लिए हम लोग अवेलेबल कराएंगे. सो मैं आशा करता हूँ आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा और उपयोगी रहा होगा. सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपने आज पूरा दिन हमारे लिए निकाला और ये समय दिया और
यहाँ हम लोग के साथ में चर्चा किया। सो इसी धन्यवाद के साथ आज का हम डे कंक्लूड करते हैं। मैं लिंडी को फिर से इनवाइट करूँगा फॉर्मली कंक्लूड करने के लिए। Well, first of all, big round of applause for that. Thank you. That was a fitting end to the Future is Young Day here, but I can see you guys have the energy and the questions and the curiosity. So please tune in tomorrow. You can tune in, register, and tune in for the hybrid, the UP chapter. If you're not going back tonight, the UP chapter tomorrow will be having many discussions on the value chain and on entrepreneurship and many other issues that are affecting UP as part of the India Rural Colloquy. So sign up for that. And also, if you are in Delhi, sign up as well for our finale, which is back here at the IIC on Thursday. You can be here face-to-face, or you can again sign up for the hybrid version and log in online and hear these insights and ideas and solutions that we have to try and build a flourishing rural India. So thank you mostly to you guys for being here, listening, being curious, being hungry to try and make this a journey that we all do together. So thanks a lot. And I would like to say a huge thank you to the panelists, the range of lived experiences and work experiences together. A final round of applause. And we would like to give some show of thanks, please. So if you could stand up, we will give you your TRI merch and packages of a way of saying thank you so much for taking part in this panel discussion. I don't know. No, I don't think so. It'd be very ironic if I can do it. Thank you to our panelists and to you. Please stay in tune with the India Rural Colloquy. Thank you.